Now today we will start with part 4 of the constitution, that is डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है. अब उस पे आने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में रिलेशन क्या है. और ये समझने के लिए ये जानना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना. तो पहला डिफरेंस जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है वो ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिशिएबल नहीं है, वाइल फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल. जस्टिशिएबल का सेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स किए जा सकते हैं, वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड. दूसरा डिफरेंस ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट. दे कंटेन पॉजिटिव कमांड्स टू द स्टेट to promote a social and welfare state. While fundamental rights are limitation upon the state's action, they contain negative injunctions to the state not to do various things. Third difference is that unlike fundamental rights, the directive principles are required to be implemented by legislation. Fourth difference is that the court cannot declare any law as void merely because it contravenes any of the directive principles of state policy, while on the other hand, courts are bound to declare the law as void if it is inconsistent with fundamental rights. Fifth point is that the scope of directive principle is much larger. The directive principle of state policy set the guidelines in larger interest of the community for achieving socialistic goals through democratic methods. They are social rights and pertain to economic field. The fundamental rights, on the other hand, guarantee some basic right to the individuals, which are mostly in nature of political rights, which tends to restrain the power of state. तो ये 5 डिफरेंस है. अब हमें कुछ केस लॉज जानने होंगे, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस लॉज में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की रिलेशनशिप के बारे में क्या बोला था. जैसे लेट अस टेक द केस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास और चंपकम दोराई राजन. अब साइटेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं कम से कम 100 बार बता चुका हूँ पार्ट 3 में, कि टेक द केस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास और चंपकम दोराई राजन. उसमें बोला गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव टू कंफर्म एंड रन सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट इन लाइन आता है केरला एजुकेशन बिल का रेफरेंस. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स. Nevertheless, in determining the scope and ambit of the fundamental rights, the court may not entirely ignore the directive principles, but should adopt the principle of harmonious construction and should attempt to give effect to both of them as much as possible. नेक्स्ट इन लाइन में आया केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट टू सप्लीमेंट वन अनदर. It can be well said that directive principles of state policy prescribe the goal to be attained and the fundamental rights lay down the means by which the goal is to be achieved. Both are both are equally fundamental, though directive principle of state policy are not directly enforceable by the court. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखिएगा. ठीक है, इस केस लॉ को, इस केस लॉ पे ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या बोला गया. तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू सप्लीमेंट वन अनदर. यहाँ पे जो सप्लीमेंट शब्द है इस पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट इन लाइन पे केस आता है जो वो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें बोला गया था इन context of striking down some part of Article 31C as was amended by the 42nd Amendment of the Constitution. बोला गया था that the Constitution is founded on the bedrock of balance between Part 3 and Part 4. Very important. It is founded on the balance between Part 3 and Part 4. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the Constitution, which is the essential feature of the basic structure. The goals set out in Part 4 have to be achieved without abrogation of the means provided for by Part 3. तो वैसे ही केशवानंद जैसी वर्डिंग थी कि दोनों के बीच में बैलेंस है, दोनों का सप्लीमेंट्री रोल है, और पार्ट 3 मीन्स बताता है जिससे पार्ट 4 के गोल्स अचीव होंगे. फिर नेक्स्ट केस आता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस अबू कबूर बाई.
इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने हेल्ड किया था कि ऑल्दो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, yet the court should make a real attempt at harmonizing and reconciling the director principles and the rights and the fundamental rights, and any collision between the two should be avoided as far as possible. The reason why the founding fathers of our constitution did not make these principles enforceable was that perhaps it was due to some vital consideration of giving government sufficient latitude to implement these principles from time to time according to economic capacity, situation, and circumstances that may arise in. And finally, in the list of cases comes Unni Krishnan versus State of Andhra Pradesh, where it was said that fundamental rights and dietary principles are supplementary and complementary to each other, and the provision in part 3 should be interpreted having regard to the preamble and directory principles. ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आउट ऑफ जितने भी केसेस मैंने मेंशन किए, केशवनंद, मिनर्वा मिल्स और उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दिस आर द बेस्ट वन. ये टाइमलाइन बतानी ज़रूरी थी कि कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे क्या क्या कंपैरिजन किया है. हाउएवर ध्यान रखिएगा, ये 3 केसेस की जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको कोट करने होंगे हमेशा जब भी सवाल पूछा जा रहा है कि रिलेशनशिप बताओ फंडामेंटल राइट और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, whether one override the other. तो याद रखिएगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है. दे आर मेंट टू सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. ठीक है, और दे हेल्प इन अचीविंग द सेम गोल, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट. As described by Granville Austin, fundamental rights and director principles are the conscience of our constitution. ठीक है, and the objective of both is to secure social, economic and political justice and the dignity and welfare of the individual as is written in our preamble. Both are same, that is part 3 and part 4, and in case of an apparent conflict it is for the court to resolve in the exercise of its power of judicial review. अब जरा केशवानंद भारती केस का मैं थोड़ा और एलैबोरेशन कर देता हूँ, क्योंकि उसमें अलग अलग जजेस ने अलग अलग कंपैरिजन किया था. जैसे चीफ जस्टिस सिकरी ने क्या बोला था, ही सेड कि रीडिंग द प्रिएम्बल द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, its inalienability and the importance of economic, social and political justice mentioned in the preamble, the importance of director principles, an irresistible conclusion emerges that it was not the intention to use the word amendment in the widest sense. It was the common understanding that fundamental rights would remain in substance as they are and they would not be amended out of existence. The expression amendment of the Constitution in Article 368 means any change in any provision of the Constitution within the broad contours of the preamble and the Constitution to carry out the objectives in the preamble and directive principles applied to the fundamental rights. It would mean that while the fundamental rights cannot be abrogated, reasonable abridgment of the fundamental right can be effected in public interest. If this meaning is given, it would enable the parliament to adjust the fundamental right in order to secure what the directive principles direct to be accomplished while maintaining the freedom and dignity of every citizen. ये जस्टिस सीकरी का कहना था, चीफ जस्टिस सीकरी एज ही देन वाज. देन जस्टिस शहलत एंड ग्रोवर, जस्टिस ग्रोवर ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट टू सप्लीमेंट वन अनदर. It can well be said that directive principles prescribe the goal to be attained and fundamental rights lay down the means by which the goal is to be achieved. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही लाइन अक्सर कोट भी की जाती है. अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. देखिए, India is a developing country where the majority of the people suffer from economic backwardness. So the directive principles assume great importance because it is only by implementing these principles that India can achieve the declared goal of welfare state wherein everyone will be assured of socio-economic justice, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में प्रॉमिस किया गया है. Undoubtedly,
The fundamental rights are important for all round development of human faculties, but it should be kept in mind that these rights are the privileges of the individual. Because what is the significance of the right of freedom of an individual who cannot afford 1 square meal a day? You're getting my point? कि एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे पास, ये काफ़ी इन सेंस में, हालांकि प्रिविलेज वुडंट बी अ करेक्ट टर्मिनोलॉजी टू रेफर टू दैट, लीगल सेंस में इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट इज़ अ राइट. Privilege is some special accommodation, yeah, some special thing that is being done for you which otherwise it wouldn't have been done. Legal sense में privilege को ऐसे ही देखते हैं. जैसे holding a gun in India, having an arms license, that is a privilege afforded by the state. Fundamental rights are not privilege. लेकिन हम लोग एक कॉमन पार्लेंस में जैसे प्रिविलेज शब्द का यूज़ करते हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि देखिए, आपको पता है ना, फंडामेंटल राइट्स आप तभी इन्फोर्स कर सकते हैं जब आपको लीगल नॉलेज हो या आपके पास लीगल मशीनरी हो, आपके पास लॉयर्स हैं, आपके पास मेथड्स हैं, या आप उन पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन्स को जानते हैं जो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, तभी तो आप इन्फोर्स कर सकते हो ना अपने फंडामेंटल राइट्स. उस पर्सन के लिए फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब है? जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या किसी मजदूर के लिए जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? कोरोना क्राइसिस में हमने देखा कि कैसे माइग्रेंट लेबर्स को एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना पड़ा. उनके लिए क्या मतलब है फंडामेंटल राइट्स का? उनके लिए तो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स का ज़्यादा महत्व होगा ना, कि स्टेट उनको, उनके लिए वेलफेयर लेजिस्लेशंस फ्रेम करे, वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे जिससे उनकी लाइफ बेटर हो, जिससे उनके पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो, जिससे उनके पास क्या कहते हैं उस हिसाब से पैसा हो जिससे वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें. कि बेयर डिक्लेरेशन ऑन द जजमेंट्स और द पेपर वुड सफाइस, नो. तो उसी सेंस में मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये जो फ्रीडम्स हैं इनका सिग्निफिकेंस उसी के पास होता है वो इज़ सॉर्ट ऑफ वेल ऑफ इन लाइफ. ठीक है, सॉर्ट ऑफ वेल ऑफ का मतलब एट इवन इफ ही इज अ मिडिल क्लास पर्सन, वो तब भी 2 स्क्वायर मील्स तो ऑब्टेन कर ही लेता है, इवन दो बेयरली, बट ही डज. तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स और इन सब चीज़ों का वैल्यू है. बट उस पुअर पर्सन के लिए, उस माइग्रेंट लेबरर के लिए जिसके पास सिर्फ दिन में जो उसकी मजदूरी या दिहाड़ी आ रही है वही उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, उसके लिए क्या मतलब रह जाता है फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? उसके लिए क्या मतलब रह जाता है कि इंडिया की रैंकिंग जर्नलिस्टिक, वो जो प्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स जो भी बनता है उसमें रैंकिंग गिर रही है इंडिया की? एब्सोल्युटली नो कॉन्टेक्स्ट. उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है. उसके लिए वेलफेयर लेजिस्लेशंस का मतलब है. तो अगर आप उससे कभी पूछोगे तो वो तो कहेगा कि वो ज़्यादा ज़रूरी है ओवर फंडामेंटल राइट. क्योंकि अगर आपको उसे चॉइस दें कि स्टेट आपके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाएगी पर आपके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा, है कि नहीं भाई? आप लोग जो हो मना कर दोगे कि नहीं भाई ऐसी कोई स्कीम मुझे नहीं चाहिए, बाकी लोग मना कर देंगे, मैं भी मना कर दूंगा कि नहीं भाई मेरे प्राइवेसी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं चाहिए आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम. पर वो मजदूर हाँ कर देगा तुरंत. वो कहेगा अरे प्राइवेसी, आप मुझे दिन भर मेरे ऊपर 24/7 कैमरा लगा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे सोशल सिक्योरिटी दे दो, मुझे इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे दो. तो ये भी आपको समझना चाहिए कि ये थोड़ा कॉन्टेक्चुअल भी बातें हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को लेके. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी एग्जामिनर्स जो होते हैं ना, जब क्वेश्चन पेपर फ्रेम करते हैं तो वो जानते हैं, अगर आप लीगल सिचुएशन जानते हैं तो आप आंसर कर ही लोगे. केशवानंद में ये बोला गया, उन्नी कृष्णन में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये बोला गया. एक मतलब रटा रटाया आंसर होता है ना कि दे आर मेंट टू supplement each other, they are complementary to each other, and fundamental right provides the means, and part 4 of the constitution provides the goals. ठीक है? And the state has to use those means to achieve the goals that has been encapsulated in part 4 of the constitution. ठीक है, अच्छा है, ये सभी लिखेंगे. पर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो टायर्ड हो जाता है कि यार सभी यही लिख रहे हैं, तो चलो अब ये पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, अपना व्यू बताइए.
कभी कभी आपका व्यू पूछ लिया जाता है ना। तो ऐसे सवाल में जहाँ पे आपका व्यू पूछा गया है, वहाँ पे आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि केशव नंद ने ये बोला गया, उन्नी कृष्ण ने ये बोला गया, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू बता रहे हो ना। आपने तो अपना व्यू बताया नहीं। आप अपना व्यू ऐसे दे सकते हैं, जैसे मैं इसलिए अपना व्यू बता रहा था कि मेरा क्या ओपिनियन था इस सिचुएशन में। आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो अपने जो कॉग्निटिव पैटर्न्स है ना, उनको केस लॉ की लैबरिंथ में खो मत दीजिएगा, उनको हमेशा फ्रेश रखिएगा। ठीक है, कि आप हमेशा नई नई चीज़ें सोचें, क्योंकि कभी कभी आपके भी व्यूज़ पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और जिसके व्यूज़ ज़्यादा अच्छे और रीजनड होते हैं उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे सवालों में। आप थोड़ा हिस्टोरिकल नैरेटिव की बात कर लेते हैं। सी, द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैव अ कॉमन origin. The Nehru Report of 1928, which contained a Swaraj Constitution of India, incorporated some fundamental rights, and these included such rights such as right of elementary education. The Sapru Report of 1945 clearly divided the fundamental rights into two categories: justiciable and non-justiciable. Sir Benegal Narsingh Rao, constitutional advisor to the Constitution Assembly, advised that the individual rights should be divided into two categories: those which can be enforced by the court and those which are not so enforceable. So, the latter of the two were moral precepts for the authority of the states. His suggestion was accepted by the drafting committee, and in doing this, our constitutional makers followed the model of the Constitution of Ireland, which sets forth certain principles of social policy for the guidance of the state, but which are not cognizable by any court. ठीक है, तो पॉपुलरली ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई यही सिमिलर मॉडल कहाँ है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड का अक्सर मेंशन होता है उस कॉन्टेक्स्ट में। ये जो हमने डिवीजन किया ना कि सम पार्ट वुड बी इन्फोर्सेबल एंड सम वुड नॉट बी इन्फोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशियबल पार्ट इज सपोज टू बी मॉरल प्रीसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, तो ये करते हुए वी फॉलोड द मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। इसीलिए बहुत पॉपुलरली बोला जाता है कि पार्ट 4 इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, और उसी की वजह से पार्ट 4 इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। पूरी तरीके से बात सच नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, नेहरू रिपोर्ट, सप्रू रिपोर्ट, सर बनेगल नरसिंह राव के उनके अलग अलग कमेंट्स थे। एक कट कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चल रहा था जैसा कि लोग बताते हैं। इट्स बेटर टू से इट वाज अ पैच वर्क। ठीक है, याद रखिएगा, व्हाई डू वी हैव डायरेक्टर प्रिंसिपल्स? डायरेक्टर प्रिंसिपल्स आर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, जो स्टेट का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है जो लेसेस फेयर एरा में होता था, वेयर द स्टेट वाज मेनली कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस फोर्सेस, आज सिर्फ वैसा ही नहीं है। आज से मेरा मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हो रहा था, वहाँ पे ये सोचा गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, वेलफेयर स्टेट पे ज़्यादा एम था। सो दैट इज़ व्हाई यू सी दीज डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड द आइडिया टू हैव सच प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली। ये भी कहा जाता है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स आए थे, पैपल्स कोर्ट्स थे। खैर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब आप हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते हैं, देन यू विल फाइंड दैट आवर डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एज कंपेयर टू दोज लेड डाउन इन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ let us refer to the genius of the constitution. What does he has to say about it? Of course I'm talking about Dr. B.R. Ambedkar. So as you know, originally directory principles were more akin to moral rather than legal precepts,
as they did not have much value from legal point of view. So the main idea underlying these principles was that they would serve an educational purpose and might serve as restraint on those who are coming in power. These persons would have to pay some respect to these principles while exercising power, and they could be held accountable for ignoring them before the electorate, if not before the court of law. So, in that sense, in the Constituent Assembly, Dr. B.R. Ambedkar said that the party which failed to implement these principles would stand to lose in the next elections. ठीक है कि प्रॉपर आंसर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको किसको देना होगा, कोर्ट को नहीं. For the non-implementation of the directive principles of state policy, the politicians or the government concerns would have to face the electorate itself. अगली बार पावर में ही नहीं आएंगे. Thus, as far as Part 4 was concerned, the accountability to enforce these principles was left to the political process. Now let us refer to Article 36 of the Constitution. ये क्या कहता है? In this part, unless the context otherwise requires, the state shall have same meaning as in Part 3. Straightforward. ये आपको बता देता है जो Article 12 में मीनिंग है वो यहाँ पे भी अप्लाई करेगी Part 4 में. Article 37 एक इंटरेस्टिंग बात कहता है कि the provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making the laws. तो जो एक्सप्रेशन है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है स्टेट को कि भले ही पार्ट 4 इन्फोर्स नहीं हो सकता थ्रू कोर्ट, जुडिशियल प्रोसेस से इन्फोर्स नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी स्टेट अथॉरिटीज़ को इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है. ठीक है, इसी सेंस में बोला जा रहा है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जब आप पूरा पढ़ते हैं तो चूंकि आर्टिकल 37 कहता है कि बिकॉज दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो ये मॉरल प्रीसेप्ट्स हैं स्टेट के लिए. मॉरल प्रीसेप्ट समझते हैं? प्रीसेप्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर. ठीक है, कमांड. तो एक मॉरल कमांड है, और अगर आप उस मॉरल कमांड को नहीं फॉलो करेंगे तो हो सकता है अगले इलेक्शन में आप जीत ही ना पाए, क्योंकि जो आपका इलेक्टोरेट है, जो पब्लिक है, वो क्यों चूज करेगी ऐसे पर्सन को जो वेलफेयर के लिए काम ही नहीं करता, जिसका सिर्फ एक ही काम है कि वो अपना खुद का कॉज ऑफ एक्शन प्रोसिक्यूट करे. जो अपने इंटरेस्ट के लिए देखे उसके लिए थोड़ी ना पब्लिक बैठे कि हाँ आप वहाँ पे जाओ और करप्शन करना. नहीं, इसलिए थोड़ी ना बैठी है. वो लोगों को पावर में इसलिए रखती है कि जिससे वो व्यक्ति उनकी मदद करे, पॉलिटिशियन उनकी मदद करे, हैं उनकी जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्रेस करे, है ना, उनकी ग्रीवेंसेस रिड्रेस करे. तो आपको ये बात समझना चाहिए कि ये मॉरल प्रिसेप्ट्स होने के साथ साथ ये एनविसेज करते हुए बनाए गए हैं कि क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेसी है तो जो भी गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स नहीं करेगी वो गवर्नमेंट इलेक्शंस में फिर सफ़र करेगी. ठीक है, सफ़र करने का मतलब क्या है? हार जाएगी और क्या. तो पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को. ठीक है, आप मेरे साथ क्लासिफाई करिएगा सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर में सबसे पहले. ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 जिसको सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस कहा जा सकता है, और आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 जो स्टेट को मैंडेट करता है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एसेट्रा एसेट्रा, वो इकोनॉमिक जस्टिस एनविसेज करता है. तो सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर में हम आर्टिकल 38 उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, उसी के साथ हम लोग ऐड क्या कर सकते हैं? पूरा आर्टिकल 39 पूरा ऐड कर सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक चार्टर में. ठीक है, तो आर्टिकल 38 एंड 39 कैन बी क्लासिफाइड इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर. वैसे ही आता है सोशल सिक्योरिटी चार्टर. ठीक है, ये हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पूछेगा, ये सिर्फ मेमोरी के लिए क्लासिफाई किया जा रहा है. तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें हमारा आता है आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 39A. इन आर्टिकल्स को जब एक जगह क्लासिफाई करेंगे
तब आप इसको कह सकते हैं सोशल सिक्योरिटी चार्टर। ठीक है। अब आर्टिकल 39 आपको पता है 39A इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करता है, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम का पार्ट है। वैसे आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट राइट टू वर्क, right to education and to public assistance in certain cases. It says that the state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education, and to public assistance in certain cases of unemployment, old age, sickness, and disablement, and in other cases of undeserved want. Article 42 talks about the provision for just and humane conditions of work and maternity relief. वैसे ही आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट लिविंग वेजेस फॉर वर्कर, वो कहता है स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्क अ लिविंग conditions of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. वैसे आर्टिकल 43A आ जाता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर आर्टिकल 47 आ जाता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये स्टेट की ड्यूटी है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटीज़ में से एक का पार्ट है। और स्टेट को ये भी इंश्योर करना होगा कि एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस वो प्रोहिबिट करे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ। आर्टिकल 47 में लिखा ही है कि नहीं। वैसे ही हमारा और क्या है आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6। State shall endeavor to provide early childhood care and education to all children until they complete age of 6. Article 46, that is promotion of educational and economic interests of the scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section. It is the duty of the state to protect them from social injustice and all forms of exploitation. So, when we refer to these articles together, Article 39 है, Article 41, Article 42, Article 43, Article 43A, Article 45, Article 46, Article 47, इनको हम एक ही सिचुएशन में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ही क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है सोशल सिक्योरिटी चार्टर। ठीक। फिर हम आते हैं कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर में। ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। आप जानते हैं कि आजकल कितनी बातें चल रही हैं इस पे, मुझे आपको केस लॉ बताने होंगे, बताऊंगा मैं। और क्या क्या आता है कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर में? आर्टिकल 48 आता है, आर्टिकल 48A आता है, आर्टिकल 49 आता है, आर्टिकल 50 आता है, आर्टिकल 51 आता है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली आर्टिकल 40 भी आता है। तो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन of village panchayat and state shall take steps to organize village panchayats and endow them with powers and authority which enables them to function as a unit of self government। ये भी कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर का पार्ट है। हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोविजन आर्टिकल 44, ये भी कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर का पार्ट है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। ये भी कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर का पार्ट है। वैसे ही आपका आर्टिकल 48A में कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, ये भी कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर का पार्ट है। वैसे ही the obligation of the state to protect every monument or place or object of artistic or historical interest which is declared by or under a law made by parliament to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export as the case may be। ये भी स्टेट की ड्यूटी बनती है, ये भी कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर का पार्ट है। फिर आपको सेपरेशन ऑफ
जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर का पार्ट है। अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर एक ही अथॉरिटी के हाथ में होगी तो कम्युनिटी वेलफेयर नहीं अचीव हो सकता। आपका प्रोसिक्यूटर ही अगर आपका जज होगा तो आपका कन्विक्शन पक्का है, समझ रहे हैं? इफ योर प्रोसिक्यूटर इज योर जज एज वेल देन योर कन्विक्शन इज गारंटीड। इसीलिए एग्जीक्यूटिव से जुडिशियल पावर सेपरेट करनी बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने जो प्रोसिक्यूटर शब्द का यूज़ किया है, मैं वहाँ पे स्टेट के सेंस में यूज़ कर रहा हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सेंस में नहीं यूज़ कर रहा। आई एम यूजिंग द एक्सप्रेशन प्रोसिक्यूटर इन द सेंस ऑफ स्टेट। अब देखते हैं ना, स्टेट का नाम वर्सेस मिस्टर ए या मिस्टर एक्स। स्टेट का नाम क्यों है वहाँ पे? बिकॉज स्टेट इज़ द वन हु इज़ प्रोसिक्यूटिंग। तो अगर मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर रहा है, वो आपको प्रोसिक्यूट भी कर रहा है और वही आपका जज भी है, तो आपका कन्विक्शन तो गारंटीड है ना। फिर तो ट्रायल भी क्यों हो रहा है? आप सीधे जजमेंट ही सुना दो। दिस इज़ वाई आर्टिकल 50 कहता है कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशियल पावर्स का सेपरेशन होगा। इट सिंपली सेज द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 51 which says that the state shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and treaty obligations in dealing with organized people with one another, and encourage settlement of international disputes by arbitration. Mark the word arbitration. कभी कभी प्रीलिम्स में सवाल बहुत आएगा कि आर्टिकल 51 में कौन से डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म का मेंशन है, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर है आर्बिट्रेशन। तो ये कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर का पार्ट है। इनसे कम्युनिटी एज अ होल बेनिफिट ऑब्टेन करती है। ठीक है, वैसे तो सोशल सिक्योरिटी चार्टर से भी बेनिफिट ऑब्टेन करती है, बट ये जो आर्टिकल्स मैंने मेंशन किए कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर में, दे आर बेटर क्लासिफाइड देयर। वैसे ही जो लेफ्ट ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जैसे आर्टिकल 43B, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं इसको कौन सी कैटेगरी में डालूं, तो ये ऑप्शन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। पढ़ना तो आपको सब है, ठीक है। पार्ट थ्री में मेन आपसे पूछा जाएगा क्या क्या डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। ये ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप इनको इन 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देंगे। तो सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर में आपका आर्टिकल 38 और 39 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों आर्टिकल्स, ठीक है। स्पेसिफिकली आर्टिकल 39 में एक एक आर्टिकल का जो क्लॉज है, जो सॉरी एक ही आर्टिकल है, उस आर्टिकल में जो जो एक एक क्लॉज है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं रीड कर देता हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये कहता है, स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट हिज पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग ए, दैट इज सिटीजन मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट ऑफ एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। बी, the ownership and control of material resources of the community are distributed as to best serve common good. C, that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of protection to the common detriment. मतलब ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए जहाँ पे रिच होते जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। डी, देर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आपको पता होगा इसको फंडामेंटल राइट बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। मैंने आपको पहले बताया था। तो इट इज़ एन असाइनमेंट, यू टेल मी कि अंडर विच आर्टिकल इज दिस अ फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में आफ्टर रीडिंग which articles together came to the conclusion that this is also the part of fundamental right। ठीक है, now you will tell me। मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 3 के डिस्कशन में, फंडामेंटल राइट के डिस्कशन में। then next, that health and strength of the workers, that is clause E, health and strength of the workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and the citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. Clause F, that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। इसमें आपका क्लॉज डी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी आता है कि स्पेसिफिकली बताइए। आर्टिकल 39 का क्लॉजेस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा क्या चीज़ कहाँ पर है। आर्टिकल 39 पढ़ी दी है,
सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 38 भी पढ़ देते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है? स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे a social order in which justice, social, economic and political shall inform all institutions of national life। वही प्रियम्बल की बात है कि जितने भी नेशनल लाइफ के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम एक ऐसा सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे जिसके अंदर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल परमिएट करेगा। ठीक। सेकेंडली, स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individual but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations। अब आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 इनइक्वालिटीज इन इनकम के मिनिमाइजेशन और डाउनराइट एलिमिनेशन को लेके बात करता है। ठीक है, स्ट्राइव टू मिनिमाइज एंड इफ यू कैन एलिमिनेट इट। ठीक है, और साथ ही साथ वो स्टेट को मैंडेट करता है कि एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एज वेल। आप एग्जामिनर कभी कभी आपको टेस्ट कहाँ पे करेगा? आपको ऐसे टेस्ट करेगा कि अच्छा ये बताइए इनइक्वालिटीज इन इनकम को लेके कौन सा आर्टिकल बात करता है, उसको रिड्यूस करने के लिए। इनइक्वालिटीज इन इनकम को रिड्यूस करने के लिए कौन सा आर्टिकल स्पेसिफिकली बात करता है, कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा आर्टिकल ये एक्सप्रेशन यूज करता है, दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आर्टिकल 39 में मेंशन है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मेंशन है, तो वो शायद उसी के कॉन्टेक्स्ट में। नो, आर्टिकल 38 वो एक्सप्रेशन बड़ा एक्सप्रेसली यूज करता है, क्योंकि ये सवाल आया है एक जगह, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप शॉर्ट नोट लिख रहे हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, तो आर्टिकल 38 का मेंशन करना ऑटोमेटिकली ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर आर एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर। ये जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने आपके सामने किया आर्टिकल 38 और 39 का, ये इसीलिए किया है कि आप ये जान लीजिए कि दोनों रिलेटेड हैं। जितने आर्टिकल्स मैंने अभी साथ में रीड किए हैं ना, कि इस चार्टर में है, सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर में आर्टिकल 38 और 39 में, फिर सोशल सिक्योरिटी चार्टर में कौन कौन से आर्टिकल हैं, फिर कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर में कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो एक तरीके से इंटरलिंक्ड है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए जो इनइक्वालिटीज़ इन इनकम को लेके हो कि उसको स्टेट कैसे मिनिमाइज करेगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में बात कहता है, या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को लेके बात कर रहा हो, तो आपको आर्टिकल 38 भी मेंशन करना होगा। ठीक है, आर्टिकल 38 मेंशन करेंगे, आर्टिकल 39 मेंशन करेंगे। लेट अस सपोज द शॉर्ट नोट दैट यू आर सपोज टू राइट इज ऑन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, तो आप आर्टिकल 38 मेंशन करेंगे। आर्टिकल 39 का क्लॉज डी मेंशन करेंगे स्पेसिफिकली, है ना। और उसके बाद आप ये बताएंगे कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया है ना। तो आपको आंसर कॉम्प्रिहेंसिवली करना है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पार्ट 4 को लेके आपको बेयर एक्ट लेवल तक का ही सवाल आएगा, उससे ज़्यादा का आने नहीं वाला। ठीक है, आपको बेयर एक्ट तक ही कन्फाइंड रहना है बस। उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल वर्क देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है इस पे और क्या ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमिक सिस्टम की बात की है व्हेन इट रेड आर्टिकल 39 clause B and article 39 clause C. Supreme Court has said, as observed in the case of State of Karnataka versus Ranganath Reddy, that the material resources of the community in the context of reordering the national economy embraces all national wealth, not merely natural resources, but all private and public sources of meeting the material needs. It may not only be public possession, मतलब private possessions भी उसमें आ सकती है। Everything of value or use in material world is material resource, and the individual being the member of the community, his resources are the part of the community. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन में कहा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 39 clause B
Yeah, the principle embodied in Article 39 Clause B of the Constitution is one of the essential directives to bring about the distribution of material resources. It should give full play to the distributive justice. इसको distributive justice के concept से compare किया और बोला कि it fulfills the basic purpose of restructuring the economic order. Article 39B therefore has a social mission. It embraces the entire material resources of the community. Its task is to distribute such resources. Its goal is to undertake distribute as best to subserve the common good. Again, in state of Tamil Nadu versus L. Abu Kavurbai, Supreme Court said that the word distribution does not mean that the property of one should be taken over and distributed to others, like land reforms, where lands from big landlords are taken away and given to landless laborers. That is only one of the modes of distribution, but not the only mode. तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कंसेप्ट में जब भी गवर्नमेंट मान लीजिए नेशनलाइज करती है किसी इंडस्ट्री को या किसी कंपनी को इस इंटेंशन से दैट इट वांट्स टू कंट्रोल द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट एज टू बेस्ट सर्व द कॉमन गुड, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कई सिचुएशंस में अपहेल्ड किया है. ये नेशनलाइजेशंस की जो प्रोविजंस हैं या कोई भी ऐसा काम जो गवर्नमेंट करती है इन ऑर्डर टू ameliorate the present situation of the community where the large amount of resources has been confined in the hands of a single class, and the government seeks to loosen that tighten grip of that class and distribute the material resources so as to best serve common good. उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का भी नाम दिया गया है. ठीक है, अब उसमें आपको ज़्यादा केस लॉस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मतलब इतना भी जो मैंने बता दिया है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए बताया दे रहा हूँ जिससे आपको बाकियों से थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है, एक एग्जांपल एक दे देता हूँ ये सब बताने के लिए. ऐसे संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कोकिंग कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 and Coal Mines Taking Over of Management Act 1972 was challenged. Court said that when Article 39B refers to material resources of the community, it does not refer to resources owned by the community as a whole, but it also refers to resources owned by individuals members of the community. The expression material resources of the community is not confined to natural resources. It is not confined to resources owned by public. It means it includes all the resources, natural and man-made, public and private owned. Therefore, all things which are capable of producing wealth for the community would be material resources. अब एक बात बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस केस में नहीं, बस केस से हट के बात बता रहा हूँ कि कई जजेस ऐसे हैं जो इतने लिबरल व्यू को सब्सक्राइब नहीं करते आर्टिकल 39B के. कुछ जजेस जो हैं उनके हिसाब से आर्टिकल 39B में प्राइवेट ओन प्रॉपर्टी नहीं आती है, और कुछ जजेस ऐसे हैं जो लिबरल सेंस में आर्टिकल 39B का इंटरप्रिटेशन करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको केस लॉ कोट किया. और खैर ये जो लिबरल सेंस वाला पॉइंट है ये मेजॉरिटी में है, तो अभी तो आप वही फॉलो करिए. वैसे ही एक और एक्शन था, जैसे स्टेट का एक्शन था. नाउ दिस इज़ द केस ऑफ टिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ असम, जहाँ पे देर वाज एन एक्ट एक्वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट रिलेट्स टू आर्टिकल 39B एज electric energy generated by the company constitute material resources of the community within the scope and meaning of Article 39B, and the object of legislation as a direct nexus with the object of distributing material resources so as to best serve common good. So the act of overtaking that company is valid. So when it comes about when we talk about the relationship of Article 38 and 39, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, Article 38 is supplemented by Article 39. ठीक है, तभी मैंने Article 38 और 39 को एक ही क्लास में रखा है. Article 39A के कंटेक्स्ट में भी एक चीज़ बता दूँ कि देखिए ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करता है. अब आप मुझे बताइए, राइट टू लाइवलीहुड क्या फंडामेंटल राइट है, और अगर है तो किस केस में हेल्ड किया गया था? तो जब भी आर्टिकल 39A में आप आंसर लिख रहे हो तो उस केस को ज़रूर मेंशन करिएगा. ठीक है,
वैसे मैं बता ही देता हूँ कौन सा केस है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप में से अगर कुछ लोग भूल गए होंगे तो मैंने फिर बता दिया है। दिस इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ राइट ऑफ लाइवलीहुड। तो जब भी आप आर्टिकल 39A की बात कर रहे होंगे, आप राइट टू लाइवलीहुड की भी बात करेंगे। वैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को लेके पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39D। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आराम से ही, क्या, बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, हैज़ एम्फसाइज्ड इन मेनी केसेस लाइक रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गृह कल्याण केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट equal pay for equal work is a fundamental right, though it is not expressly declared by the constitution, yet it may be deduced by construing article 14 and 16 in light of article 39D। ठीक है। तो जैसे let us notice the observation in गृह कल्याण केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें बोला गया था that equal pay for equal work is not expressly declared by the constitution as a fundamental right, but in view of directive principles of state policy as contained in article 39D of the constitution, equal pay for equal work has assumed the status of fundamental right in service jurisprudence having regard to the constitutional mandate of equality in article 14 and 16 of the constitution. Again, in the case of Associate Banks Officer Association versus State Bank of India, AIR 1998, Supreme Court page number 32, Supreme Court again said that we have interpreted and applied the doctrine even more widely to prevent discriminatory pay scales within an organization which is owned by or is an instrumentality of the state, provided that different pay scales exist in one organization are applied to employees doing work of equal value and there is no rational explanation for the difference. तो मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ फंडामेंटल राइट। वैसे इन द केस ऑफ वी मार्कंडेय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन अराइजेस वेयर द employees are equal in every respect in educational qualifications, duties, functions and measures of responsibilities, and yet they are denied equality in pay. If the classification for prescribing different scales of pay is founded on reasonable access, then the principle will not apply। ठीक है। अब मैं वापस उसी डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, हम लोग ने काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं उस बात पे, फंडामेंटल राइट्स पे ही। एक आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की टेक्निक है कि जब भी फंडामेंटल राइट्स पे आंसर लिख रहे हो ना, कोशिश करिएगा उसको किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेट कर दीजिए। जैसे आर्टिकल 22 पे बात कर रहे हैं, आर्टिकल 39A से रिलेट कर दीजिए। आर्टिकल 21 पे बात कर रहे हैं विद रिगार्ड टू पर्सनल लिबर्टी, और वहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस के कंटेक्स्ट में आपका सवाल है। फिर आर्टिकल 39A, वैसे तो एक्सेस टू अ लॉयर एंड इक्वल जस्टिस इन फ्री लीगल एड हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट, येट लिंक करना सीखिएगा। ठीक है। वैसे ही अगर आप आर्टिकल 23 और 24 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 39 का क्लॉज ई और एफ लिंक कर दीजिएगा उससे। ये सब इंटरलिंकिंग आपको करनी है मेन। ठीक है। इससे आपकी अपनी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट करेगी। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय मी। ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इंटरलिंक कर लेते हैं। जिसके पास जितनी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन होगी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, जिसने जितना ज़्यादा पढ़ा होगा, मतलब बेयर टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जितनी ज़्यादा जिसके पास क्लैरिटी होगी, वो सबसे अच्छी इंटरलिंकिंग कर पाएगा। और मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा इंटरलिंकिंग ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो मैंने हिंट दे दिया है कि कैसे करना है, और आप इंटरलिंकिंग करिएगा और फिर उस पॉइंट पे लेके मुझे असाइनमेंट सबमिट करेगा। जैसे फॉर अ केस इन पॉइंट, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21, 23, आर्टिकल 39E और F से लिंक किया था, और आर्टिकल 41 और 42 से भी लिंक किया था टू सिक्योर द रिलीज ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड फ्री देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। क्या बोला था उस केस में? दैट द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी इंश्राइंड इन आर्टिकल 21 डिराइव्स इज लाइफ ब्रेथ फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पर्टिकुलरली आर्टिकल 41 एंड 42। बोला था कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए आपको केस लॉ की ज़रूरत नहीं है मेन। ठीक है। केस लॉ तो मैं एज एन इलस्ट्रेशन देने के लिए बता रहा हूँ। केस लॉ की इंपॉर्टेंस पार्ट 3 में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। कि देखिए जिस तरीके से कोर्ट्स इंटरलिंक कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी इंटरलिंक करना है।
अगर आपको याद हो तो मैं जब आपको रिजर्वेशन का टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता रहा था ना कि आपको तब आर्टिकल 46 की भी बात करनी पड़ेगी, मतलब लिंक करना पड़ेगा, ज़रूरी है, उससे लगता है कि आपका आंसर अच्छा है तो वो ज़रूर करिएगा। खैर अब आ जाते हैं आर्टिकल 44 पे, उस पर थोड़ा केस लॉ सुन लीजिए। Now you can mention a celebrated case of Sarla Mudgar versus Union of India on this point. AIR 1995 Supreme Court page number 1531, where the Supreme Court said that we need to have uniform civil code in this country. That Article 44 is based on the concept that there is no necessary relation between religion and personal law in a civilized society. Article 25 guarantees religious freedom, whereas Article 44 seeks to divest religion from social relations and personal laws. Marriage, succession, and the like matters of secular character cannot be brought within the guarantee enshrined under Article 25, 26, and 27. The Hindu law, though of a sacrosanct origin, has been secularized. Supreme Court pointed out that successive governments in India till date have been wholly remiss in their duty of implementing the constitutional mandate under Article 44. Accordingly, the court urged the government of India to have a fresh look at Article 44 and endeavor to secure the citizens a uniform civil code throughout the country in India. अब ये एक बात जान लीजिए, ये जो लॉ है ना, इट इज़ ओनली इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर टू फ्रेम, ठीक है। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ओनली विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। इस पर जुडिशरी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना सकती, ठीक है, ये सिर्फ लेजिस्लेचर ही बना सकते हैं। सो राइट नाउ वी हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट ऑफ गोवा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद रखिए, मैं अभी बता रहा हूँ कि जो मैरिज और डिवोर्स का पार्ट है और जो इंटरस्टेट या सक्सेशन से रिलेटेड मैटर है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है। लिस्ट 3 की एंट्री 5 देखिएगा, ठीक है। तो it is within the competence of both parliament and the state legislature to make a common civil code। दोनों में दोनों ही बना सकते हैं। वैसे तो बेटर है पार्लियामेंट बनाए, पैन इंडिया एप्लीकेशन होगा, लेकिन इट इज़ ऑल्सो विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इटसेल्फ, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के भी पास वो ताकत है। स्टेट लेजिस्लेचर इफ इट वांट्स, इट कैन फ्रेम अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विच विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द स्टेट, ठीक है। Why? Because the matter falls within the list 3 of the constitution. So list 3 of the 7th schedule, that is the concurrent list। concurrent list की entry 5 देखिएगा। खैर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या बात हुई थी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थोड़ा हो हल्ला मचा था आर्टिकल 44 को लेके। सेवरल मुस्लिम मेंबर्स ने एक अप्रीहेंशन जताया था कि उनके पर्सनल राइट्स एब्रोगेट हो जाएंगे, और इस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई जो दिया गया था वो ये था कि इंडिया ने वैसे ही यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ अचीव कर ली है, और दो देर वॉज डाइवर्सिटी इन पर्सनल लॉ, देर इज़ नथिंग सैक्रोसेंट अबाउट देम। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला वो ये है कि सेक्युलर एक्टिविटीज सच एज इनहेरिटेंस covered by personal law should be separated from religion, and a uniform law applicable to all would promote national unity। Lastly उन्होंने कह दिया कि legislatures would not amend any personal law in future अगर people were opposed to it। अब turned out कि people are always opposed to it। वैसे ही there is next case, that is नेक्स्ट केस से पहले था ये मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। अब आपने सुना होगा इस केस के बारे में। ये यार 1995 सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 945। Supreme Court ruled in that case that a Muslim husband is liable to pay maintenance to the divorced wife beyond the period of iddat। Supreme Court in that case regretted that Article 44 has remained a dead letter and urged the legislatures of the country to frame a common civil code for the country, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट अप्रिशिएट्स द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड परसुएशंस ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, बट नेवरदलेस a beginning has to be made if the constitution is to have any meaning। It is the state which is charged with the duty of securing a uniform civil code for the citizens of the country, and unquestionably it is the legislative competence to do so। it has the legislative competence to do so, ठीक है। तो ये मैटर एंटायरली लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में है, याद रखिएगा। तो टाइम एंड अगेन जो कोर्ट हैं वो अक्सर अर्ज करते हैं, दे आर न्यूमरस जजमेंट, एक ही नहीं है, बहुत सारे जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पे, दैट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया है गवर्नमेंट को टू फ्रेम अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइम एंड अगेन।
As of recently, in the case of Shayara Bano versus Union of India, once again there was a discussion on the scope of personal law and Article 44. ये वही है जिसमें ट्रिपल तलाक जो था ना, तलाक के बिद्दत स्ट्रक डाउन किया गया था. फिर एक और केस था मधुकेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 17 अप्रैल 1996 को डिसाइड हुआ. वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट को कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए. तो कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है, मधुकेश्वर के केस में भी बोला था कि वो सिर्फ इस मैटर पे वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्रिएट नहीं कर सकता. इट कैन एट बेस्ट एडवाइस. हाँ ये है कि भाई जैसे मान लीजिए पीस मील प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं पर्सनल लॉज में, उनका वो कुछ कर सकता है, जैसे तलाक के बिद्दत स्ट्रक डाउन कर दिया, ये सारी चीज़ें कर सकता है. लेकिन ऑल इन ऑल वो ये थोड़ी ना कर सकता है कि बाकायदा वो लेजिस्लेशन ही बना दे, है ना. दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट एरिया. और जब अगर कोर्ट ऐसा करेगा तो लिटरली फिर यही कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेप्ड इन लेजिस्लेटिव डोमेन. तो ये बेटर है कि ये वाला इशू ना गवर्नमेंट अपने ही लेवल पे हैंडल करे, क्योंकि इट इज़ बेस्ट सूटेड टू द टास्क. और वैसे भी पार्ट 4 मैंडेट किसको कर रहा है, गवर्नमेंट को कर रहा है ना, स्टेट को कर रहा है. वाई शुड ऑल द प्रॉब्लम्स बी बियर्ड बाय जुडिशरी इटसेल्फ. तो जो मधुकेश्वर से स्टेट ऑफ बिहार है, इसमें भी एडवाइस दी गई थी टू द सेम इफेक्ट कि देखिए हम एडवाइस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम करना तो स्टेट का काम है. तो एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि इट इज़ विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर्स अलोन टू फ्रेम अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए. फिर आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट 7 में है, 7 शेड्यूल की थर्ड लिस्ट में 5th एंट्री देखिए तो आप पाएंगे कि ये जो मैरिज और डिवोर्स, सक्सेशंस एसेट्रा, ये जो सारी चीज़ें हैं पर्सनल लॉज के मैटर हैं, इट फॉल्स इन द डोमेन ऑफ व्हाट, कॉन्करेंट लिस्ट. मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों लॉज बना सकते हैं. ठीक है, उस पॉइंट को लेके. तो अभी तक कॉमन सिविल कोड किधर है, सिर्फ स्टेट ऑफ गोवा में है और कहीं नहीं है. अब जरा मैं आर्टिकल 46 के कॉन्टेक्स्ट में जरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को लेके कुछ बात कर लेता हूँ. बात क्या करना है, एक छोटी सी लाइन ही आपको मेंशन करनी है. अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो केस लॉ है वो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस नवाब खान गुलाब खान. इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 and 46 mandate the state as its economic policy to provide socio-economic justice to minimize inequalities in income and opportunity and status. It positively charges the state to distribute its largest to the weaker section of the society envisaged in Article 46 to make socio-economic justice a reality, meaningful and fruitful, so as to make the life worth living with dignity of a person and equality of status and to constantly improve excellence. सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो आपका आर्टिकल 46 है, उसको जब आप आर्टिकल 38 और 39 के साथ पढ़ते हैं तो आप ये गैदर कर सकते हैं कि स्टेट जब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कंसेप्ट पे आता है तो जब उसने रिसोर्सेज जो लिए हैं, तो अगर वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स, तो ये एक पॉजिटिव ड्यूटी बनाई गई है स्टेट पे कि आप वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के फेवर में लेजिस्लेशंस करोगे. स्टेट की ड्यूटी है टू मेक द वीक स्ट्रॉन्ग. ठीक है. वैसे ही एक और केस था आपका, वैसे बहुत सारे केसेस हैं, आई डोंट थिंक केसेस आर इम्पोर्टेंट, बस ये जानिए कंसेप्ट क्या है. Again, in the context of distributive justice, Supreme Court said that distributive justice comprehends more than achieving lessening of inequalities by differential taxation, giving debt relief or distribution of property owned by one to many who have none, by imposing ceiling on holdings, both agricultural and urban, or by direct regulation of contractual transaction, by forbidding certain transaction, and perhaps by requiring others. मतलब इनके अलावा भी और मीन्स हैं, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है. देखिए सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से बातें करता है कि कुछ लोग ना समझ पाए, पर ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज टेलिंग कि देयर आर मेनी अदर मेथड्स ऑफ लेसनिंग द इनइक्वालिटीज़, जैसे आप डिफरेंशियल टैक्सेशन स्कीम रखें, डेप्ट रिलीफ प्रोवाइड करें, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करें, सीलिंग लिमिट इम्पोज करें,
चाहे एग्रीकल्चर एरिया में, अर्बन एरिया में हो, कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करें, या सर्टेन ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिट करें, या सर्टेन ट्रांजैक्शंस रिक्वायर करें। अगर आप वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के फेवर में कर रहे हैं, आर्टिकल 46 परमिट्स यू। व्हेन यू रीड आर्टिकल 46 टुगेदर विद आर्टिकल 38 and 39, Supreme Court further continued and said, it also means that those who have been deprived of these properties by unquestionable bargain should be restored to their property. All such laws may take the form of forced redistribution of wealth as a means of achieving a fair division of material resources amongst the member of the society, or they may be legislative control of unfair agreements. कभी कभी क्या होता है ना कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, SC STs होते हैं, इनसे लोग कम दामों में इनका जो लैंड होता है ओन कर लेते हैं, तो इनके इंटरेस्ट बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है। हो सकता है इनके पास करोड़ों की ज़मीन हो, इनको नहीं पता होता है, कोई आके कहता है अरे तुम्हारी ज़मीन की वैल्यू तो 50,000 है तो मुझे बेच दो। अब वो लोग इतने गरीब होते हैं और इन्फॉर्मेशन होती नहीं तो वो बेच भी देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग है इसको प्रोहिबिट भी कर सकता है स्टेट, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और मान लीजिए लैंड ट्रांसफ़र भी हो गया है तो ऐसे ट्रांसफ़र को मानने से भी स्टेट इनकार कर सकता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करार दे सकता है। ठीक है, वैसे वॉइड करार देना कोर्ट का मेन काम है, कोर्ट वॉइड करार देगा, लेकिन लेजिस्लेचर एक्ट बनाएगा कि लेट अस सपोज कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एक्सप्लॉइट किया गया है और उसको एक्सप्लॉइट करके वो लैंड लिया गया है और एक अनकॉन्शनेबल बार्गेन मेक की गई है उनके साथ, इवन दो इन कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोर्ट को लगता है कि येस दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर तो उसको वॉइड करार दे दे। ठीक है, तो ऐसा लेजिस्लेशन स्टेट बना सकती है। नेक्स्ट केस इज चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, where it was said that is a settled policy of the government as enjoined by Article 46 of the Constitution, and particularly Article 38 and 39 and the preamble of the Constitution, that economic and social justice requires to be done to the weaker section of the society and in particular to scheduled castes and scheduled tribes, and to prevent them from social injustice and prevention of all forms of exploitation. ठीक है, तो interlinking आपको समझा रहे हैं। So economic empowerment of Dalits, tribes and poor as a part of distributive justice has been held to be the part and parcel of the constitutional law of the land. ठीक है, कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे जाके ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ दलित्स एंड ट्राइबल्स को और उनके फेवर में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को फंडामेंटल राइट का भी नाम दिया है। जैसे टेक द केस इन पॉइंट मुरलीधर दयान देव केसेकर वर्सेस विश्वनाथ पांडु बारदे, 1995 सप्लीमेंट्री वॉल्यूम नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 549। यहाँ पे बोला था इकोनॉमिक एम्पावरमेंट to the Dalits, tribals and the poor as a part of distributive justice has been held to be a fundamental right. The state is therefore enjoined to provide adequate means of livelihood and to distribute material resources of the community to the poor, weaker sections of the society, and the Dalits and to the tribals in particular. बेसिकली इस केस में कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राइट टू लाइवलीहुड की जो बात थी आर्टिकल 21 में जो की गई थी उसको रीड किया, आर्टिकल 46 को रीड किया, आर्टिकल 39 को रीड किया, आर्टिकल 38 को रीड किया और बोला कि इनका जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर ये सब किया है। ठीक है, अब आर्टिकल 47 पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेड आर्टिकल 47 and 21 टुगेदर एंड हैज़ कल्ड आउट फ्रॉम देम the obligation of the state to provide better health services to the poor. ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप एक केस को देखिए, दैट इज़ विंसेंट पानिकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 990, where the Supreme Court said that the maintenance and improvement of public health have to rank high as these are indispensable to the very physical existence of the community, and on the betterment of these depends the building of the society to which the constitution makers envisaged. Attending to the public health in our opinion therefore is of high priority, perhaps one at the top. वैसे ही in the case of पश्चिम बांग खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आपको याद होगा आर्टिकल 21 पे केस था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि in a welfare state the primary duty of the government is to secure the welfare of the people, provide adequate medical facilities for the people,
is an essential part of the obligation undertaken by the government in the welfare state. The government discharges this obligation by running hospitals and health centers which provide medical care to the person seeking to avail of those facilities. अब आर्टिकल 47 की वजह से जो लिकर ट्रेड पे जो भी बैन लगते हैं बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है. ये मैं डिस्कस कर चुका था आर्टिकल 19 जब बता रहा था, ठीक है, तो उसको रिटरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आर्टिकल 48 के कॉन्टेक्स्ट में आप कुरैशी एम एच कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट मेंशन कर सकते हैं. वैसे तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो भी आर्टिकल 48 का भी उसमें डिस्कशन हुआ था, तो उसमें मुझे ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो केस लॉ मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ. वैसे ही प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को लेके MC मेहता के केसेस हैं, है ना. राइट टू क्लीन environment, pollution free air has been held to be a fundamental right under article 21. अगर आपको पता हो, MC मेहता के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कितने प्रिंसिपल क्या कहते हैं बनाए, कितने डायरेक्शंस और ऑर्डर्स दिए, और उस पर्पस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39 क्लॉज ई, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A क्लॉज जी सबको टुगेदर रीड करके पता नहीं कितनी गाइडलाइंस बनाई. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन एक्टिव इंटरेस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट. वही MC मेहता के केसेस जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फाइल हुआ है. 48 के आर्टिकल 48A के कंटेक्स्ट में आपको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप की, जिसमें वो रिपीटेडली कहता रहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रिवर्स, सीशोर एक्सेट्रा आर हेल्ड बाय द स्टेट एज अ ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल एंड स्पेशली फॉर फ्यूचर जनरेशन. These constitute the common properties and people are entitled to uninterrupted use thereof. The state cannot transfer public trust properties to a private party. If such a transfer interferes with the right of public, the court can invoke public trust doctrine and take affirmative action for protecting the right. तो MC मेहता के आप वोलियम गैस लीक केस मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे ताजमहल को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शंस दिए थे, वो भी मेंशन कर सकते हैं. वो भी MC मेहता केसेस का ही पार्ट है. तो आर्टिकल 48A पे जब भी लिख रहे हो तो आप जान लीजिए MC मेहता केसेस का मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आई डोंट थिंक एनी एक्स्ट्रा डिस्कशन ऑन लॉज वुड हेल्प योर कॉज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बताने लगा हूँ, उसके लिए अभी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसे मैंने सोचा था कि आर्टिकल 50 पे अगर मैं आपको चाहूँ तो आपको कुछ केस लॉज बता सकता हूँ, है ना. There are many case laws which can be quoted by me, like Nixon M. Joseph versus Union of India, T. Falter versus Union of India versus Delhi High Court Bar Association, etc. etc. बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है. अब देखिए आर्टिकल 50 का रीज़न क्या है, रीज़न समझ लीजिए. आर्टिकल 50 का रीज़न बता देता हूँ. रीज़न ये है कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में क्रिमिनल मैजिस्ट्रेसी वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो there was a very strong agitation against such a state of affairs. तो public demand ये थी to separate the judiciary from the executive at all levels, and it was vehemently argued that without such a separation, the independence of judiciary at the lower level would be nothing more than a mockery. Hence, this idea is incorporated under Article 50. The idea underlying Article 50 was that such an anomalous position to be corrected कि executive और judicial power एक ही body में merge हैं, और जिससे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग हो जाएं, तभी आर्टिकल 50 का क्रिएशन हुआ था. ये फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड में था. बाय एंड लार्ज इन द प्रेजेंट सोसाइटी दिस गोल हैज़ बीन अचीव्ड. ठीक है, तो आप जानते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ द अब तो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया है. किस लेवल यहाँ तक चला जाएगा वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने भी नहीं सोचा था. तो दूसरे सेंस में ये भी बोला जा सकता है कि आर्टिकल 50 इज़ बेस्ड ऑन द बेडरॉक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, विच रिक्वायर्स आर्टिकल 50 रिक्वायर्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट. दिस मीन्स दैट देयर शैल बी सेपरेट जुडिशियल सर्विस विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस और कंट्रोल. इस पर केस लॉ मेंशन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता. आर्टिकल 51 पे ज़्यादा कुछ नहीं है, पर एक केस बता देता हूँ. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
इसमें बोला गया था that as Article 253 contains a non-obstante clause, it operates notwithstanding anything contained in Article 245 and Article 246. Article 246 confers on the Parliament the power to enact laws with respect to the matters enumerated in List 1 of the 7th Schedule of the Constitution. Entries 10 to 21 of the List 1 of the 7th Schedule pertains to the international law. In making of any of the laws in any of these entries, the Parliament is required to keep Article 51 in mind. तो बस अब आर्टिकल 51 का मेंशन कर दीजिए कि आर्टिकल 51 में क्लॉज ए टू डी में क्या क्या कहा गया. ये सब बेयर एक्ट के लेवल के हैं, आपको बेयर एक्ट का ही ध्यान रखना है अभी. इट इज़ द पार्लियामेंट अलोन. एक बात याद रखिएगा, इफ़ वी रीड आर्टिकल 253 तो हम लोग ये तुरंत समझ जाएंगे कि इट इज़ द पार्लियामेंट अलोन वो हैज़ द कॉम्पिटेंसी टू फ्रेम अ लेजिस्लेशन फॉर गिविंग एन इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं कर सकते, ठीक है. सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है. ओनली पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर. उसमें आर्टिकल 253 में लिखा है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस of this chapter, Parliament has the power to make any law for the whole or part of the territory of India, for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries, or any decision made at an international conference, association or other body. तो जो ट्रीटी इम्प्लीमेंट करना है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने का जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है. इसके पर्पस के लिए आप लिस्ट 1 ऑफ यूनियन लिस्ट में जाइए, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें आप एंट्री 10 देखिए, और एंट्री 10 से लेके एंट्री 21 तक देखिए. इन सारे मैटर्स पे किसके पास जुरिस्डिक्शन है? ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली, ठीक है. ये मेंशन कर देंगे, वैसे एग्जामिनर समझ जाएगा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मास्टरी है, ठीक है. आपको इतना ही बताना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं बताना. व्हेन वी कम टू डायरेक्टर प्रिंसिपल, इनफैक्ट जो केस लॉ मैंने मेंशन किए सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, आपको याद एक भी ना हो तो चलेगा. इन पार्ट 4 आपको एक भी केस लॉ जो मैंने बताया ना याद हो चलेगा. हाँ, बस वो आर्टिकल 44 के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा, उसमें शॉर्ट नोट लिखना होता है, तो उसको लेके केस लॉ याद कर लीजिएगा. वो भी सिंपल केस लॉ है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. वो 2 केस लॉ याद कर लीजिएगा, दैट्स इट. अब एक चीज़ याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट अक्सर वाइल इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, बहुत रेफर करता है इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट आर्टिकल 21 और फंडामेंटल राइट्स. बहुत रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार. तो ये भी एक नया ट्रेंड है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजिंग, ये नया ट्रेंड नहीं है, मतलब नया इस सेंस में कह रहा हूँ कि 1980 से चला आ रहा है, दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजिंग इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड ट्रीटीज़ विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड विद एनी फॉरेन कंट्री, या जो यूनाइटेड नेशंस की कोई ट्रीटीज़ हैं जिस पे इंडिया इज़ ऑल्सो अ सिग्नेटरी, तो वहाँ पे उन ट्रीटीज़ और उन चार्टर्स को सुप्रीम कोर्ट बहुत यूज़ करता है टू इंटरप्रेट द म्यूनिसिपल लॉज, ठीक है, स्पेशली द फंडामेंटल राइट्स. लेकिन एकेडमिकली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जाने दें तो उसके अलावा ये जो सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड है to bring in universal declaration of human rights and civil and political rights under for the purpose of interpretation of laws, ये ठीक नहीं है, ठीक है. ये ठीक एटीट्यूड नहीं है. as far as the interpretation of fundamental rights goes, you can argue that it is the correct view, but it is not good everywhere, ठीक है. क्योंकि eventually क्या होगा ना, इवेंचुअली ये होगा कि कोर्ट विल स्टार्ट स्टेपिंग इनटू द पार्लियामेंट्स डोमेन. अब आर्टिकल 253 कहता है कि पार्लियामेंट अलोन लेजिस्लेशन बनाएगी, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता. अब सुप्रीम कोर्ट अगर लोकल लॉज में वही प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट करने लगा जिसको लेके मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस पे साइन कराई है, ठीक है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन पे साइन कर दिया, या कोई ट्रीटी या ऑब्लिगेशन अंडरटेक कर लिया, एक्सेट्रा कुछ भी कर सकती है ना. तो
पार्लियामेंट ही तो है ना जो लेजिस्लेशन बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरप्रिटेशन के थ्रू वही ट्रीटीज और ऑब्लिगेशंस के प्रिंसिपल्स म्यूनिसिपल लॉ में डालने लगी तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो जाएगी, और फ्रैंकली सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट करता नहीं है, ये भी बता दूं, बहुत ही इक्का दुक्का सिचुएशन अराइज हुई है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन बात ये है ना कि इसको अभी से ही थोड़ा ये बोल देना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू गो अबाउट इट, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट वन सेड दैट इंटरनेशनल लॉ टुडे इज नॉट कन्फाइंड टू रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, द स्कोप कंटिन्यूज टू एक्सटेंड today. The matters of social concern such as health, education and economics apart from human rights fall within the ambit of international regulations. International law is more than ever aimed at individuals. It is almost accepted proposition of law that the rules of customary international law which are not contrary to municipal law shall be deemed to be incorporated in the domestic law. अब it is fine, ठीक है, एक तरीके से वो व्यू फाइन भी है, क्योंकि कभी कभी ये सारी चीज़ें फ़ायदा भी हमको करती हैं पर कभी कभी ये चीज़ें नुकसान भी बहुत करती हैं। सो ये बेटर होता है कि ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के ऊपर रख दी जाएं, क्योंकि पार्लियामेंट सिचुएशन देख समझ के ही एक अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे फ्रेम करती है, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि जजेस वो ओनली गॉट टू रीड द ट्रीटी या वो ओनली गॉट टू रीड द कन्वेंशन जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सिग्नेटरी हो सकती है कि इट हैज़ जस्ट मेयरली साइन द कन्वेंशन। अब वो वेट कर रही है कि नहीं हम अभी इस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, 20 साल बाद करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया कि आप 20 साल बाद क्या करोगे, हम अगले ही दिन किए दे रहे हैं, तब दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन लॉ का जो रुख है, लॉ का जो टेक्सचर है वो चेंज कर सकता है। तो वी नीड टू अवॉइड दीज सिचुएशंस एज फार एज पॉसिबल, वरना डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अफेक्ट होगी। खैर ये तो खैर मेरी अपनी तरफ से मैं बातें कर रहा था, उसको जाने दीजिए। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, पार्ट 4 वी आर डन विद, एंड दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।